Ni Ladakh pustrung ni fie sona mochuk duk se khastuna ni sona malta chisung khala mazar baswazaru ni sona malta chisung khala mazar baswazaru सिर्फ नहीं मिलेगा तो मेरे जैसा हो जाएगा, एक पूरा लद्दाख मेरे जैसा हो जाएगा। ना 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 ऐसे नहीं, कसम से सर, ऐसे नहीं। लद्दाखी को बिल्कुल एक लवारिस की तरफ फेंक के रख दिया। अभी तक कोई पूछने वाला नहीं आया, यूटी प्रशासन की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी। अरे फिर जिद्दे की सूरज बनाकर छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, मेरे निगाह में वो शख्स आदमी ही नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। जुदे सलाम अलैकुम। Day 17 of the protest, 17वां दिन, और हम मौजूद हैं उसी जगह पे। We are back at the same spot. We were here till last night, but in the morning as I have come back, I see the entire compound filled with people. The first thing that had greeted me here yesterday is the same thing that I have witnessed now once again. That hymn, the soothing hymn, which would almost transcend you to a different world altogether. But once you walk in here, you know that the hymn is so peaceful, so pure, yet there is a deep underlying unsettlement among people. Even though in this quiet atmosphere, the peaceful hymns would invoke a special feeling in your heart, yet these people are saying that nothing can hide the disquiet in them. Sonam Wangchu hasn't moved an inch from his place, and the man is here, lying on that same little space where I saw him yesterday. And 17 days of fast will take a toll on health, and he has stopped talking absolutely, because saving energy is more important than anything. I was talking to his people and they were saying his condition has deteriorated further. Thus he is wearing that cap so that the head can be saved from the chilling wind, and he's also wearing a mask mostly when he's talking to people. Sonam ji, तबीयत ठीक है आपका? He is not in a position to talk, and I will not even ask him for an interview today. He has given a statement yesterday, and I understand what it takes to speak when you are fasting. Over here there is a new addition today, and it is where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by free into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Lines written by Nobel laureate Rabindranath Tagore. इस जगह पे मौजूद है बहुत सारे लोग जो सोनम वांगचुक के साथ वो भी फास्ट रखे हैं, शायद 17 दिन के लिए नहीं, किसी ने 2 दिन के लिए, किसी ने 3 दिन के लिए, किसी ने 5 दिन के लिए।
लेकिन एक इंसान है जो सोनम वांगचुक के साथ कंधे पे कंधा मिला के और हाथ में हाथ मिला के वो भी पूरे 17वां दिन यानी आज तक बिना कुछ खाए फास्ट में बैठे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, प्लीज एक सेकंड। मैं नहीं चाहता मेरे लिए आपको कोई तकलीफ हो सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्री स्तंदा है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ जी। तो मैं हाल ही में मैं यहाँ पे रिटायर हुआ हूँ। तो अभी मेरे तरफ से सरकार को, भारत सरकार को एक संदेश है। हम यहाँ पे हमारा अनशन बैठ के आज से 17वां दिन हो गया। अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंगे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी देश में हमारा जो स्वतंत्रता है वो ख़त्म होने जा रहा है। लद्दाखी को बिल्कुल एक लावारिस की तरफ फेंक के रख दिया। अभी तक कोई पूछने वाला नहीं आया, यूटी प्रशासन की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी। इस तरीके से बहुत सारे अनशन हुआ। हाल ही में 2014 में शायद अन्ना हज़ारे जो लोकपाल बिल के लिए अनशन किए थे, 13 दिन में सरकार खुद आके उनका अनशन तोड़ा। यहाँ तो अभी 17 दिन इतना ठंड खुले मौसम में बिल्कुल ठंड -14 17 में फेंक के रखा हुआ है। तो इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ, यहाँ से संदेश देता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ लद्दाख के लिए सोचे, लद्दाख की आवाज़ सुने। लद्दाख कोई जायज़ मांग रहा है। दूसरा ये जो हमारे जो मांगे हैं, सरकार खुद ने जो मैनिफेस्टो में रखा गया है, 6 शेड्यूल के नाम लेकर हमने 2 बार सरकार को जिताया है। एक बार पार्लियामेंट उसमें जिताया, दूसरा जो ले में अपना हिल कौंसल है वो बड़ी बहुमत के साथ सरकार को उम्मीद करके हमने सरकार को जिताया। लेकिन सरकार ने हमने आज उसी की जगह उसके बदले में हमको क्या खुले मैदान के नीचे और इतना ठंड में हमको यहाँ पे खुले छोड़ दिया। तो इसीलिए हम जो सरकार से काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन सर आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, सरकार ने इसके बारे में उसके बाद और कोई बात नहीं किया, लद्दाख के साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ आज। इस तरीके से रहेगा तो अगला कोई भी मैनिफेस्टो जो चुनाव घोषणा पत्थर में जो भी वादा किया जाता है, सरकार कोई भी सरकार आई उस पर कोई भरोसा करेगा नहीं लोग। पर्यावरण का सुरक्षा पूरा दुनिया का सुरक्षा है। अभी ग्लेशियर में मैं क्या भूतपूर्व सैनिक को पता है, पहले मैं ग्लेशियर 7 बार मैं काट चुका हूँ, 7 टाइम्स। तो पहले ग्लेशियर कहाँ पे थे, अभी ग्लेशियर पिघल के कहाँ जा रहे हैं। तो इस साल अभी सभी को पता है कि लद्दाख में अभी दिसंबर तक बर्फ़ नहीं गिरी। जुजिला जनवरी फरवरी तक जो है जुजिला ओपन रहा। तो ये बर्फ़ खत्म होने के बाद पानी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर किसान कहाँ रहे। तो इसीलिए हम जो है वातावरण के खिलाफ बहुत ज़रूरी है। तो इनका तबीयत खराब हो रहा है, कितना खून निकल रहा है? थोड़ा खून निकल गया ना, एक गर्मी हो गई होगा, गर्म हो गया होगा ना। कितना उम्र है बच्चे का? इसका 2 साल 4 महीना। कौन है? ये मेरा बेटा का है। बेटे का बेटा? लड़की का बेटा। ये मेरे साथ बैठता है ना। अच्छा, दादू है आप? ना, मैं भी रहता है। फिर ही घर लेकर आया इधर ही। घर नहीं जाएंगे? अब जाएगा ना, शाम को जाएगा। उसका तबीयत खराब हो रहा है। अभी थोड़ा देखेगा ना, अभी देखेगा। अभी तो नहीं आगे जाएंगे, ये गर्मी होगी ना। हाँ, क्यों इसको लेके आए? जो दूसरे आदमी नहीं है ना, मेरा बेटा 2 ही, वो दोनों स्कूल में गया। फिर मैं ये साथ है ना, मेरे साथ पे लेकर आया। उधर बेलने और कोई है नहीं। This little child is continuously bleeding and the weather is very, I would say very aggressive at times. The wind is blowing, it's cold, at times the sun would come up and then it would be hot and ये इनके दादू है। दादू। और दादू के घर में और कोई है नहीं, तो बच्चे को साथ में लाया इन्होंने अनशन में यार। अनशन में लाया हमें। लेकिन मुझे फ़िक्र ज़्यादा इस बच्चे का है, क्योंकि इस चारों तरफ जो पेपर टिश्यूज़ है इसमें सिर्फ और सिर्फ खून दिख रहा है और उनके नाक से खून निकल रहा है। होता है ऐसे इंक्लेमेंट वेदर में
अगर आप बाहर ज़्यादातर रहे, कल सोनम वांगचुक का भी हुआ था, सूख जाता है अंदर और इसीलिए ब्लीडिंग शुरू होता है। लेकिन जहाँ तक मन बल की बात है, जहाँ तक स्पिरिट की बात है, जहाँ तक हिम्मत की बात है, शायद इनका कहना है कि वो नहीं सूखेगा। खून भी सूख जाएगा एक टाइम, लेकिन वो नहीं सूखेगा। आप प्लीज़ इसको लेके घर जाइए जल्दी। ये लद्दाख में मुश्किलात तक हल मचाना ज़बरदस्त। लियाकत लोशा एक जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जम्मू में है, स्टूडेंट है और जम्मू से आज आए हैं ले में सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। इस जगह की जो माहौल है, उस माहौल में और एनर्जी पंप इन किया अपनी शेर व शायरी से और जुड़ रहे हमारे साथ इस वक्त। लियाकत, आप जम्मू से आज ही आए, आपका तबीयत ठीक लग रहा है? देखो, जब एक इंसान ठान जाते है कि अपने कौम के लिए कुछ करें तो तबीयत मैटर नहीं करता है, उसका हौसला मैटर करता है। फिर भी मैं कहूँ तो वहाँ से और यहाँ की क्लाइमेट में बहुत डिफरेंट है, तो बहुत मुश्किलात करना पड़ेगा और मैं सहने के लिए भी तैयार हूँ। और सोनम वांगचुक सर से ही इंस्पायर होकर मैं उन्हीं पे लिखता हूँ। आजकल जिन चीज़ों को देखकर, उनके हालातों को देखकर जम्मू से यहाँ आने के लिए मजबूर हुआ मैं। आप भी मजबूर हो गए? हाँ, मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि एक यूथ जो है ना, वो एक कौम की रीढ़ की हड्डी होता है। तो आज एक यूथ जाके वहाँ पर कहेंगे कुछ तो कौम के दूसरे लोगों को हौसला आएंगे और कौम के बुज़ुर्गों को लगेंगे कि आज भी हमारे रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़िंदा है, जोश में है और लड़ना चाहता है अपने हुकूक़ के लिए। और सबसे पहले कि आप अगर सोशल मीडिया हो या सोशल एक्टिविस्ट हो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बहादुरी को सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर कोई मेन मीडिया मुझे दिख नहीं रहा है। फिर भी आप उसको मेन मीडिया कहेंगे? मेन मीडिया मतलब जो ज़्यादा चलता है, उस मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो सच्चाई के राह पर दिखाते हैं। मेन का मेरा कहने का मकसद है जिसको लोग ज़्यादा देखता है। और यहाँ लोग 17 दिन से यहाँ पर अनशन पे है, वो उनका हालत नहीं कह रहे। वो लोग कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के कोई यूट्यूबर ने शाम का जहर कहाँ छुपाया। आज उनको कहने का वक़्त नहीं है। आज ये कहने का वक़्त है कि सोनम वांगचुक जी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका हालत क्या है। और वहाँ पर कह रहा है कि उस सोशल मीडिया यूट्यूबर की मम्मी रो के 3 कतरे आंसू बहाया। ये कोई सोशल मीडिया होता है? अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इंडियन सोशल मीडिया का मतलब एक स्टम है एक सोशल मीडिया है कि नहीं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। उससे बेहतर तो स्टार प्लस अच्छा है, कम से कम उसमें जो सीरियल दिखाता है लास्ट में हकीकत थोड़ा दिख जाता है। देश के लोगों को क्या कहेंगे? देश के लोगों को यही कहेंगे कि जितने भी सपोर्टर है वो हमें सपोर्ट करें। आज आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप ख़ुद यहाँ आया है। लद्दाख मात्र एक ऐसा जगह है जहाँ भोले लोग रहते हैं। लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ 1999 का वार बताता है कि लद्दाखी कितने देशभक्त हैं। लद्दाख एक ऐसा वाहिद जगह है जहाँ पर देश का नाम लेकर पहले जान देने के लिए कुर्बान करता है। लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पर वीर चक्र हो, जितने भी सेना आर्मी के लीडर जो मेडल होते वो सामने अपने हक में रखने वाले लोग हैं। लद्दाख वो जगह है जहाँ पर बाहर के लोग, इंडिया के लोग आए तो पहले उसको खिलाते, उसको सुलाते, बाद में ख़ुद बुखार रहे भी तो वो उसको कवर कर देते हैं। फिर भी हमारे साथ ना इंसाफ़ी। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं? There is a very famous saying called impossible is nothing, and every time you say impossible it actually means I will make it possible. He has suddenly made it possible today. We all know, in order to be specially abled, all that you need is the courage. And this is the story of courage. While others have come here, they're all seated on the floor. He has decided to be on the wheelchair, but be part of the protest. Sir, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पद्मस तंजन है। पद्मस तंजन। आपका घर कितना दूर है इधर से?
मेरा घर यहाँ ले से 60 किलोमीटर दूर है सर। आप इधर क्यों आए सर? तकलीफ नहीं हो रहा आपको? तकलीफ नहीं सर, अगर तकलीफ अभी अभी तो नहीं, अगर शिक्षण नहीं मिलेगा तो फिर तकलीफ होगा सर। अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है सर। इतना इम्पोर्टेंट है, इतना सेंटिमेंटल है ये चीज़। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आराम से दादा, आराम से। अभी हमें यूटी मिला, तो अगर शिक्षण नहीं मिलेगा तो मेरे जैसा हो जाएगा, पूरा लद्दाख मेरे जैसा हो जाएगा। ना 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 ऐसे नहीं कसम बोलते, से सर। ऐसे नहीं बोलते दादा। मैं सोचता हूँ सर ये सब। ना 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 ऐसे नहीं, मैं सोचता हूँ ना, मैं हकीकत बोल रहा हूँ सर, मैंने खुद देखा है। अभी लद्दाख में क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं चल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है जॉब? सारे जवान लोग भूखा बैठे हैं सर, इधर उधर भागे हुए बेचारे। कहाँ मिलेगा अभी जो उन्होंने बोला सेव कर देगा, अगर सेव कर देना हो तो सिर्फ देना चाहिए ना। फिर क्या है ना सर? आप घर नहीं जाएंगे? हाँ, मैं रात को इधर नहीं बैठ पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, इधर तकलीफ है, इसलिए मैं शाम को घर जाऊँगा, फिर सुबह आऊँगा सर। देश के लोगों को क्या कहेंगे सर? देश के लोगों को ये कहूँगा कि जागो, और मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ देखो, सुनो, ये लद्दाख की क्या बोलता है, लद्दाख की मांग दे देना। फिर क्या तकलीफ है उसको, जब अगर तो उसको जम्मू कश्मीर से अलग करने में दिक्कत नहीं आएगी तो ये शिक्षण देने में क्यों दिक्कत आ रहा है फिर? थैंक यू सर, मैं ज़्यादा न कहूँ। You know, I can only give you a hug. You know, I can only give you a hug. Thank you. It takes a lot of courage to say what he has said. Thank you so much. Thank you, sir. It really takes a lot of courage to say what he has just said. Thank you, sir. दे दो ना, मन की बात सुनो, मन की बात जानो, और अगर हमारा दुख दर्द समझ में आता है तो दे दो ना। इससे मासूम चीज़ शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना, और शायद इन्होंने जो कहा ये कमज़ोर दिलों के लिए नहीं है, चाहे जितना बड़ा आपका दिल का साइज़ हो। इन्होंने जो कहा ये कमज़ोर दिलों के लिए नहीं है। मैंने सुबह से देखा वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, किसी की मदद मांगे वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन फिर वापस आए। अभी तक मैंने इनको एक निवाला खाते हुए नहीं देखा, और कहानी एक ही है सबके लिए, कोई कुछ नहीं खा रहा है, कोई कुछ नहीं खा रहा है। एंड इधर पे एक पोस्टर है जो सुबह से मैं देख रहा हूँ, लिखा हुआ है डोंट लेट आवर लद्दाख fall. Look at this poster. It is just not creative. It also shows somebody trying to hold Ladakh by the string, one that is hanging quite precariously. And then there is this note, don't let our Ladakh fall, #6th schedule. Our job is to tell these stories, and we would do our job. What happens in the future, we don't know. But
you know, it hurts us very deeply when somebody has to keep aside one's own physical pain and suffering like he is going through, and then rise up to a cause and let the world know that don't think us weak. Don't ever think us weak. Weak are they who think others weak. I think that's the message that all these people out here are giving out to the people outside Ladakh. हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं, और हमें कमज़ोर लाचार समझने की गलती आप मत करना, क्योंकि कमज़ोर और लाचार तो वो है जो दूसरों को कमज़ोर और लाचार समझते हैं, कमज़ोर और लाचार बनने में मजबूर करते हैं। कहानी लद्दाख की, लद्दाख से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हुसैन के साथ लेह लद्दाख से तमाल शाह, न्यूज़ द ट्रूथ, NTT के लिए। Depois